Dear students, welcome to all of you in our PKG group of institutions. Myself, Deepak Saini, Assistant Professor of Chemistry. Today, we have to discuss about atomic and molecular structure. Atomic and molecular structure. How does the atoms and molecules are combined and what are the regions which are responsible for the formation of covalent bonding takes place. This lecture acquire molecular orbitals of diatomic molecules like that of nitrogen, oxygen, carbon monoxide molecules, equations of atomic and molecular orbitals. How does the equation responsible for the formation of molecular orbitals and energy level diagrams of atomic orbitals. Okay students, molecular orbital theory. The first approach for the formation of compounds was given by Koshal and Lewis approach. Koshal-Lewis approach gives us information about octet rule. How does the octet rule formation? ऑक्टेट रूल क्या होता है? इसमें बेसिकली हम स्टडी करते हैं कि डिफरेंट एटम्स रिक्वायर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट आर नोन एज ऑक्टेट रूल। हर कोई एलिमेंट अपने आप में स्टेबल होना चाहता है और स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, विच वी आर स्टडी इन केस ऑफ ऑक्टेट रूल। आफ्टर दैट when this theory are failed, then Weschper theory comes. Valence shell electron pair repulsion theory. This theory gives us about information of some simple molecules. How does the trigonal pyramidal shape takes place? Octahedral, tetrahedral, trigonal bipyramidal. But this theory contains some limitations. After that, valence bond theory comes. Valence bond theory gives us about more information as comparison to Weschper theory, but this theory requires some limitations also. Like that of valence bond theory assumes the bonding takes place between atoms for the formation of molecules are 100% ionic covalent. 100% covalent, but no bonds are 100% covalent, so this theory are not applicable, and this theory are not also gives us information about magnetic behavior of dioxygen molecule. After that, molecular orbital theory comes. This theory gives us information about the magnetic behavior of different molecules and also spectra of different complexes molecules. Introduction. MOT initially developed by Robert S. Millikan. Robert S. Millikan ने इसकी डिस्कवरी की थी कि किस तरह से MOT और we can say that molecular orbital theory or formation takes place. The bonding between atoms is described. उन्होंने सबसे फर्स्ट इसके बारे में इसकी बॉन्डिंग के बारे में हमें बताया। प्रोवाइड आंसर टू मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, और जो मोर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन ही कैन इजीली एक्सप्लेन। ऑलवेज वांट टू प्रेडिक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में उन्होंने अच्छे से बताया कि किस तरह से किस मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो किस तरह से हमें देखने को मिलता है। And this is term can help predict molecular properties. Molecular properties के बारे में इसने बताया कि कोई चीज़ की प्रॉपर्टीज कैसी हैं, like that of shape, कि molecules trigonal है, tetrahedral है, spheroplanar है, octahedral है, इन सब के बारे में इसने हमें बताया। Magnetism behaviors are of two types. Magnetism
behavior are of two types. Magnetic behavior are of two types. First one are paramagnetism, and second one are diamagnetism. Paramagnetism are those molecules which contain number of unpaired electrons. जिसके पास भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेंगे। लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है, वो सारे के सारे डायामैग्नेटिज्म बिहेवियर को शो करेंगे स्टूडेंट। Next, we have to discuss about principle of MOT. Principle of MOT require principle of MOT. In molecules, atomic orbitals combine to form molecular orbitals which are surrounded the molecules. Molecular orbital theory acquires bonding and anti-bonding. When atomic orbitals are combined, they give rise to molecular orbitals. Atomic orbitals के बारे में स्टूडेंट्स आप अच्छे से जानते भी होंगे। Atomic orbitals वो orbitals होते हैं जो एटम्स की वजह से बनते हैं, और s ऑर्बिटल की जैसे शेप होती है स्फेरिकल नेचर का होता है ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल्स की जो शेप होती है, इट मे बी ऑफ डम्बल शेप, इट मे बी ऑफ that shape, or it may be of that shape. But in case of d orbitals, they having 4 orbitals. Due to this, they having 5 possible structures. But when atomic orbitals are combined, they give rise to molecular orbitals, and molecular orbitals are more stable than atomic orbitals. They can give us information about very much more as comparison to atomic orbitals. Next, molecular bonds having lower potential energy than in separate atomic orbitals. अब बेसिकली जो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो ज़्यादा यूजफुल है एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, इसका रीजन क्या है कि जब मोलिकुलर बॉन्ड्स बनते हैं उस टाइम पे जो एनर्जी होती है इसकी काफ़ी कम हो जाती है, और मोर आर द एनर्जी लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। तो जब मॉलिक्यूल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो जब उनकी एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स है स्टूडेंट वो स्टेबल हो जाएगा। थस इलेक्ट्रॉन प्रेफर टू स्टे इन मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अगर हम कंपैरिजन करें एटॉमिक ऑर्बिटल्स का या फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस शो करते हैं टू स्टे होता है रहना, रहने में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को प्रेफर करते हैं किसमें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, आइए उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फर्स्ट थिंग इज दैट इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, जितने की एटॉमिक ऑर्बिटल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर भी ऑर्बिटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में 5 ऑर्बिटल्स हों और हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने हो, 4 हो। दिस इज नॉट टेक इक्वल नंबर। अगर हमारे पास 5 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कितने होंगे स्टूडेंट, 5 ही होंगे। सेकंड बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ लाइक एनर्जी, और वी कैन से दैट जब व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कंबाइन होना जरूरी है। जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जब भी क्या बनेगा स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा। ओके, लेकिन अब कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा, दैट इज डिपेंड अपॉन देयर एनर्जी। लाइक एनर्जी के अगर हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं तो वो प्रॉपर तरीके से ओवरलैप हो पाएंगे। अगर उनकी एनर्जी सेम नहीं है तो वो प्रॉपर तरीके से मिक्स नहीं हो पाएंगे और वहां पे जो ऑर्बिटल्स हमारे पास बनेगा वो ज्यादा स्टेबल नहीं बनेगा स्टूडेंट। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बारे में। तो जो एनर्जी का ऑर्डर है स्टूडेंट वो सेम होना बहुत जरूरी है। अगर एनर्जी का ऑर्डर सेम नहीं होगा
तो वहां पर जो ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे वो प्रॉपर तरह से देखने को हमें नहीं मिलेंगे। फॉलोइंग पाथ बोथ ओबे पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स एंड हंट्स रूल। इन दोनों के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। अब पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें क्या कहते हैं और हंट्स रूल हमें क्या कहता है स्टूडेंट। तो जो हमारे पास पोली एक्सक्लूजन है, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारे पास ऐसा है कि ईच ऑर्बिटल एक्वायर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन फिलिंग इन ऑर्बिटल्स, देन ईच ऑर्बिटल एक्वायर 2 electrons and they should be of opposite spin. Like that, in case of s orbital, it acquire 2 electrons and they should be of opposite spin. अगर उनकी स्पिन दोनों की सेम होती है तो हमारे पास ये हमारा पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे नहीं करता है। अब ऐसा बेसिकली ऐसा क्यों है कि पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि व्हेन 2 electrons आर अवेलेबल इन सेम ऑर्बिटल और सेम ऑर्बिट बोल सकते हैं, जब इसमें अवेलेबल होगा स्टूडेंट्स तो उस केस में जो ऊपर वाला हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो आपको दिख रहा है, इसकी स्पिन हमें देखने को मिलती है +12 और नीचे वाले की क्या देखने को मिलती है -12। जब इनकी स्पिन आपस में कैंसल आउट हो जाएगी स्टूडेंट्स तो यहाँ से जो स्पिन निकल करके आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 0 आएगी। तो जब जितनी ज्यादा स्पिन होगी उतना ही मॉलिक्यूल्स कैसा होगा स्टूडेंट्स, अनस्टेबल होगा। तो स्पिन का कम होना जरूरी है, तो इसीलिए हमें पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को मानना जरूरी है कि अगर हर एक ऑर्बिटल्स के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हो सकते हैं एंड दे शुड बी ऑफ अपोजिट स्पिन, सेम स्पिन में अवेलेबल नहीं होंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले स्टूडेंट्स हंट्स रूल के बारे में। हंट्स रूल भी काफी अच्छा रूल है हमारे पास एक। हंट्स रूल का मानना ये है स्टूडेंट्स कि पेयरिंग जो होगी ऑर्बिटल्स में वो बाद में होगी, वो जब होगी जब हर एक ऑर्बिटल के पास क्या होगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स 2p के बारे में, तो पेयरिंग का इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अगर हम ऐसे कर देते हैं, पहले पेयरिंग कर दी इस तरह से, तो दिस इज रॉन्ग। तो हर एक ऑर्बिटल के पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। दिस इज राइट अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। तो हंट्स रूल का मानना यह है स्टूडेंट्स कि जो पेयरिंग होगी वो बाद में होगी when each orbital require 1 electron. When atomic orbitals are combined, they give rise to molecular orbitals. Atomic orbitals के जुड़ने से क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, molecular orbitals बनते हैं। But molecular orbitals are of 2 types. First one are known as bonding molecular orbitals, which having less energy, and second one are anti-bonding molecular orbitals which having large energy, तो यानी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, लेकिन एक की एनर्जी हमें कम देखने को मिलती है। एंड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर सेड टू बी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड हायर एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर सेड टू बी एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। अब इनके बारे में डिफरेंस हम स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हमारे पास यहाँ पर हैं और एंटी बॉन्डिंग हमें यहाँ पर शो हो रही है। इट इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जब कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल एडिशन ओवरलैप होगा स्टूडेंट, एडिशन मींस इस तरह से उनके बीच में क्या होगा, एक एडिशन ओवरलैप देखने को मिलेगा, तो वहां पर जो बने उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और इस केस में जो वेव फंक्शन होता है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का इज गिवन बाय साई, इसे बोलते हैं सिंबल को साई। साई हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, वेव फंक्शन होता है। क्या होता है, वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में हमने क्या लिया हुआ है, साई ए प्लस साई बी, दैट मीन्स वेव फंक्शन ऑफ फर्स्ट एटम एंड वेव फंक्शन ऑफ सेकंड एटम स्टूडेंट। In case of subtraction overlap, in case of anti-bonding molecular orbitals, we have seen that subtraction overlap takes place. The wave function of anti-bonding molecular orbitals is given by psi star. This star represents
एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals psi a minus psi b. It is formation takes place the lobes of atomic orbitals are of same sign. यहाँ पर lobes का सेम साइन होना बहुत जरूरी है बॉन्डिंग के लिए, बट यहाँ पर जो लोब्स का डिफरेंट साइज होना अनिवार्य है। ठीक है स्टूडेंट, लोब्स का सेम साइन होगा तो वहां पर एडिशन हो जाएगा स्टूडेंट, लेकिन अगर वहां पर लोब्स का सेम साइन नहीं है, डिफरेंट साइन है, तो वहां पे सब्सट्रैक्शन हमारे पास शो करने को मिलेगा। द एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लोअर देन दैट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स विच आर फॉर्म्ड। दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड दे गिव राइज टू molecular orbitals. First one acquire, these are atomic orbitals, these are atomic orbitals, these are molecular orbitals. First one acquire lower in energy and are said to be bonding molecular orbitals, and second one the energy of anti-bonding molecular orbitals is higher. जो एनर्जी हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट वो ज्यादा देखने को मिलती है, और वी कैन से दैट these are known as anti-bonding molecular orbitals. The electron density is high in a region where the nuclei of bonded atom, यानी कि जब प्रॉपर तरीके से मिक्सिंग होगी, सेम ओवरलैपिंग होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखने को मिलेगी स्टूडेंट इन दोनों के बीच में, वो कैसी होगी? हाई होगी। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लो। एंटी बॉन्डिंग के केस में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो हमें कम देखने को मिलती है। एवरी इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग molecular orbitals contributes towards attractive forces. इस केस में attractive forces देखने को मिलती है because when the atoms combine they give rise to molecules, and during the time of molecules the energy of molecules are very very small as comparison to atoms. और जब जिस भी चीज की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रिस्पॉन्सिबल फिनोमिना ये होता है स्टूडेंट कि उसकी एनर्जी कैसी है? कम है। Every electron in the anti-bonding contributes towards repulsive forces. Anti-bonding का मीन्स है कि वहां पर repulsive forces एक्ट हो रही है, और repulsive forces के एक्ट होने की वजह से ही जो मोलिक्यूल देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हमें देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। अब these are the equation which show bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals. Psi is the wave function which show bonding molecular orbitals, and psi star that is anti-bonding, यानी कि वेव फंक्शन है किसका? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का। 1/√2 हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू अवेलेबल है। पॉजिटिव साइन रिप्रेजेंट बोथ द लोब्स हैव सेम साइन, आइदर में हैव पॉजिटिव साइन, आइदर में हैव सब्सट्रैक्शन साइन। ठीक है स्टूडेंट, तो द पॉजिटिव साइन होगा इसका मतलब एडिटिव ओवरलैप है, दिस इज नोन एज बॉन्डिंग molecular orbitals. But in case of negative sign show anti-bonding molecular orbitals, and repulsive forces are act between the different atoms. These are the diagrammatically show how does the bonding and anti-bonding molecular orbitals are formed. In case of same sign we have seen that the density of electrons are very very high in between the two nucleus. This is known as bonding molecular orbitals, and when the lobes of different signs and they are combined they give rise to sigma star and known as anti-bonding molecular orbitals. In between the anti-bonding molecular orbitals we have seen that a dotted line show, this dotted line are said to be nodal plane. Nodal plane. Nodal plane are the region where probability of finding the electron is minimum, or we can say that electrons are not available in between the two atoms, or we can say that the energy of bonding molecular orbitals are very very small as comparison to anti-bonding molecular orbitals. Sigma bond. These are the symmetrical about its axis. सिग्मा बॉन्ड आर फॉर्म्स व्हेन लोब्स आर इन सेम प्लेन। जब सेम प्लेन के अंदर लोब्स होंगी तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है स्टूडेंट्स उसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग सिग्मा ऑर्बिटल्स, तो जो सिग्मा ऑर्बिटल्स भी फॉर्म होते हैं वो भी आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन आर सिग्मा बॉन्डेड मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
and second one are known as sigma star anti-bonding molecular orbitals. Sigma having lesser energy as compared to sigma star because bonding orbitals having lesser energy as comparison to anti-bonding molecular orbitals. This one show the atomic orbital of hydrogen atoms, atomic orbital of hydrogen and atomic orbital again किसका है, हाइड्रोजन का। तो 1s इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 1s में 1 इलेक्ट्रॉन हमारे यहाँ पर शो हो रखा है हाइड्रोजन में और 1 ही यहाँ पे हाइड्रोजन में शो हो रखा है। तो जो मोलिक्यूल फॉर्म हो रहा है, मोलिक्यूल ऑर्बिटल है हमारे पास किसका है, H2 का। तो 1 + 1 2 इलेक्ट्रॉन और दोनों किसमें आ गए हमारे पास, इसमें आपको देखने को मिले। तो बेसिकली जो हमें देखने को यहाँ पर मिला है कि जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन का कंबाइन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइड्रोजन से, दे गिव राइज टू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। फर्स्ट वन हैविंग लोअर इन एनर्जी आर सेड टू बी सिग्मा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स एंड सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। एंड बॉन्ड ऑर्डर वी कैन बी कैलकुलेट, बॉन्ड ऑर्डर इज कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। हाफ ऑफ बॉन्डिंग में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने अवेलेबल है स्टूडेंट, 0। तो यहां से निकल के आता है स्टूडेंट हमारे पास हाफ ऑफ 2 × 2 दैट मीन्स 1। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में एक सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है और जो H2 का मॉलिक्यूल है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। उसका रीजन क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल है। These are the figure show bonding and anti-bonding when 2p orbitals are combined with 2p orbitals, both having same lobes during the time of overlapping, then sigma bonding molecular orbital takes place. But when they having different lobes during the time of bond formation, they give rise to anti-bonding molecular orbitals. Pi bonds. The pi bonding bonds as a side to side overlaps, which then causes there to be no electron density along the axis, but there is density above and below the axis. एक्चुअली में सिग्मा बॉन्ड जो बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनता था स्टूडेंट, हमने इसके बारे में स्टडी भी किया था। बट जो पाई बॉन्ड होते हैं, पाई बॉन्ड जो बनता है साइडवेज ओवरलैपिंग पे हमें देखने को मिलता है। इस तरह की ओवरलैपिंग हमें पाई बॉन्ड में देखने को मिलती है। लेकिन अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है स्टूडेंट्स, तो हमेशा पाई बॉन्ड जो बनेगा इसके अबव और बिलो द प्लेन बनेगा। वही यहाँ पे शो किया हुआ है कि जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो अबव और बिलो बनेगी, किससे, एक्सिस से। अगर इस एक्सिस को हम एज्यूम करते हैं कि एक्स एक्सिस हमारे पास है, तो ये वाई एक्सिस में या फिर जेड एक्सिस में हमें देखने को मिलेगा। और जितना ज्यादा अगर बात करें स्टूडेंट्स की जो ओवरलैपिंग के बारे में, कि जो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग होती है वो काफी ज्यादा वीक होती है एज कंपेरिजन टू सिग्मा बॉन्डिंग की कंपेरिजन में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे हमारे पास किस तरह से हमारे पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं पाई के वो कंबाइन होते हैं। व्हेन 2p ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड विद 2p ऑर्बिटल्स, दे गिव राइज टू बॉन्डिंग, one lie lobes above the plane and one lie below the plane. But in case of opposite lobes, we have seen that एक रिपल्सिव फोर्स वहां पे एक्ट होती है, एंटी बॉन्डिंग इसको हम बोल सकते हैं। और बीच में प्लेन बन जाता है स्टूडेंट, जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस कैसे हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन को मिलने के चांस कैसे हो गए स्टूडेंट्स, 0 हो गए। दैट इज नोन एज नोडल प्लेन या फिर नोडल स्पेस। डिटरमिनिंग द बॉन्ड ऑर्डर, bond order indicates the strength of the bond. The higher the bond order, stronger the bonds. bond order का स्टूडेंट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। bond order का फॉर्मूला क्या होता है, half of A minus B. A is the number of bonding molecular orbitals and B is the number of anti-bonding molecular orbitals. बट जब आप डिफरेंट बुक्स को पढ़ोगे तो वहां पर आपको बॉन्ड ऑर्डर का एक फॉर्मूला और मिल सकेगा, जिसे बोल सकते हैं हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस हाफ ऑफ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग। जहां पर जो बी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
and Na represent number of anti-bonding molecular orbitals. More are the bond order, more will be the stability of molecule. Stability of the molecule. If the bond order is 0, then no bond are produced and the molecule is not stable. In case of helium molecules, we have seen that there is no bond or exist. Why? Because bond order comes out to be 0. Those species having bond order comes out to be 0, then these molecules are not exist. If bond order is 1, then it is single covalent bond. In case of hydrogen atoms, we have already seen that hydrogen atoms acquire a single bond, or we can say that bond order is 1. The higher the bond order, the more stable is the molecules. In case of oxygen molecules, we have seen that double bond are exist. In case of nitrogen molecules, we have seen that a triple bond are exist. So we can say that nitrogen molecules are very stable as comparison to oxygen, and oxygen are very stable as comparison to hydrogen, because more are the bond order, more will be the stability of molecule. Next we have to discuss about molecular orbital theory of lithium molecules. The ground state electronic configuration of lithium Z is equal to 3. लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? 3 होता है. इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर 1s2 2s1. यहाँ पर शो भी क्या हुआ है? When two lithium atoms combine, the orbitals overlap occur efficiently between the 1s orbitals between the 2s atomic orbitals. The overlapping of 1s orbitals with 2s orbitals is ignored because the energy difference. तो यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट्स? 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं और 2s में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. किसमें? 3 होते हैं. किसमें? लिथियम में. ऐसे लिथियम का एटॉमिक ऑर्बिटल कहाँ पर है? एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम का, और यहाँ पर भी क्या एटॉमिक ऑर्बिटल लिथियम का. बीच में क्या बन जाता है? मोलेक्युलर ऑर्बिटल किसका? Li2 का. तो 3 + 3 6. तो 2 + 2 + 2 दैट मीन 6 इलेक्ट्रॉन हमारे पास अवेलेबल होते हैं. किसमें? मोलेक्युलर ऑर्बिटल डायग्राम में. तो अगर इस केस में हम इसका निकालते हैं स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन σ1s2, σ*1s2 एंड σ2s2. bond order comes out to be half of number of bonding minus number of anti bonding electrons. half of bonding में हमारे पास कितने अवेलेबल है स्टूडेंट? बॉन्डिंग में अवेलेबल हमारे पास कितने हैं? 2 + 2 4, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2. तो 4 - 2 is 2, और bond order comes out to be 1. So lithium molecules having stable with bond order is 1, and lithium molecules are diamagnetic in nature because they having not any unpaired electrons. They having paired of electrons. Due to this reason, lithium molecules are diamagnetic in nature. In case of beryllium molecules, one bonding and one anti-bonding molecular orbitals are present. The ground state electronic configuration of Be2 molecules are σ1s2, σ*1s2, σ2s2 एंड σ*2s2. तो इस केस में हमने यहाँ पे 1s वाले शो नहीं किए हुए. नीचे इसके पॉसिबिलिटी और भी हैं वैसे 1s वालों की, वो हमने यहाँ पे शो नहीं करे. यहाँ पर 1s होता है, यहाँ पर 1s होता है, उसको हमने यहाँ पे शो नहीं किया. तो कितने हो गए? 2 + 2 4. तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अवेलेबल है और 2 यहाँ पर अवेलेबल है. ऐसे 2 यहाँ पर और 2 यहाँ पर. तो 4 + 4 दैट इज 8. 4 2 6 और 2 8. So it is diamagnetic in nature because it having paired of electrons. It is diamagnetic in nature and the bond order comes out to be 0 because bond order निकालने के लिए number of bonding minus number of anti bonding. Half of bonding acquire 4 electrons and anti bonding also acquire 4 electrons. So bond order comes out to be 0, hence beryllium molecules are not exist. Beryllium molecules are not exist. Next we have to discuss about the electronic configuration of oxygen 1s2 2s2 2p4 because atomic number of oxygen is 8. That is 1s2 2s2 2p4. Electronic configuration comes out to be σ1s2, σ*1s2, σ2s2, σ*2s2, σ2pz2, pi 2px2, pi 2p/2, pi *2px1, pi *2py1. Valence bond theory assumes that oxygen molecules are diamagnetic in nature, but in case of MO theory,
it gives us about clear picture and say that oxygen molecules are paramagnetic in nature because due to presence of one electron in pi star 2px and one electron in pi star 2py, oxygen molecules are paramagnetic in nature. 10 electrons are present in bonding and 6 electrons present in anti-bonding. So bond order comes out to be half of bonding minus anti-bonding, that is 2, or we can say that diatomic molecule. इस तरह से हमारे पास क्या होता है, a double bond exists between oxygen molecules. Next we have studied molecular orbital diagrams of N2 molecules. In case of N2 molecules, we have seen that atomic number of nitrogen is 7, 1s2, 2s2, 2p3. Exactly half filled configuration देखने को यहाँ पर हमें मिलती है स्टूडेंट. तो दिस इज मोर स्टेबल एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन. These are the 14 electrons in N2. Atomic orbital of nitrogen, atomic orbital of nitrogen and molecular orbitals of N2. तो 7 plus 7 यानी कि 1s2, 2s2. In case of oxygen molecules, we have seen that, and in case of nitrogen molecules, we have seen that the electronic configuration, atomic orbitals of nitrogen and atomic orbital of nitrogen, they gives combined to molecular orbitals of N2 molecules. And the electronic configuration sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2 and sigma 2pz2. The bonding half of 10 minus 4, that is 3. That means N2 molecules acquire a triple bond, or we can say that a triple bond are exist between diatomic molecules of nitrogen. And N2 molecules are diamagnetic in nature because they having paired of electrons. So this is very stable as comparison to oxygen molecule. And last we have to discuss about atomic orbitals of carbon monoxide. MO theory of CO molecules. This side show atomic orbitals of carbon and atomic orbital of oxygen. Atomic orbitals, that is 2 plus 2 4 or 2 6 and 2 below है 2 plus 2 4 or 4 8. When 8 or 6 combine, they give rise to 14 and 4 नीचे आ चुके हैं, 4 to 6 to 8 और 8 और 6 14. That means नंबर ऑफ बॉन्डिंग में हमें देखने को यहाँ पर जो मिलते हैं वो कितने मिलते हैं स्टूडेंट, 2 to 4 और 6 10. एंटी बॉन्डिंग में जो हमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट, एंटी बॉन्डिंग में जो हमें देखने को मिलते हैं दैट इज 4. तो दैट मीन्स बॉन्ड ऑर्डर कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ number of bonding minus number of anti-bonding, which comes out to be half of 10 minus 4, that is half of into 6 comes out to be, that is 3. That means carbon monoxide molecules acquire a triple bond between them. These molecules are again diamagnetic in nature because they contain a pair of electrons in outermost orbitals which having not any unpaired electrons. So these molecules are diamagnetic in nature. And the electronic configuration of CO molecules are sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s2, pi 2px2, pi 2py2, sigma 2pz2. इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन हमें यहां पर देखने को मिलेगी स्टूडेंट्स. Next we have to discuss about application of MO theory. This theory is based upon LCAO, which is known as linear combination of atomic orbitals. That means जो atomic orbitals की
ओवरलैपिंग हमें देखने को मिलती है स्टूडेंट्स, वो एक लीनियरली कंबाइन हमें देखने को मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे नहीं साइडवेज हमें देखने को नहीं मिलेगी, साइडवेज हमें देखने को बहुत कम मिलेगी इस केस में, बिकॉज जो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है एज कंपेरिजन टू पाई बॉन्ड की। दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल। मैग्नेटिक बिहेवियर का मीन्स है पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, प्रेजेंट है स्टूडेंट, उसे हमने बोला है पैरामैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन वहां पर अवेलेबल नहीं है, दैट मीन्स वो पेयर अवस्था में है, पेयर में है। यहां पर कैसे थे, अगर अनपेयर्ड है। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, डायामैग्नेटिक। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रिपेल होते हैं। अगर डायमैग्नेटिक स्पीसीज के पास हम मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जाएंगे तो वो रिपेल्ड हो जाएंगे। बट इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स के पास जब मैग्नेटिक फील्ड को लेकर के जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं स्टूडेंट, अट्रैक्ट हो जाते हैं। This theory can explain paramagnetic behavior of oxygen molecules which are not explained by वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मानना ये था कि जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हमारे पास अवेलेबल है वो हमारे पास कैसा है स्टूडेंट, डायामैग्नेटिक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी दिस गिव्स अबाउट क्लियर इंफॉर्मेशन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर पैरामैग्नेटिक इज नॉट डायामैग्नेटिक। This theory explains the molecule exists or not on the basis of bond order। bond order के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। अगर उनके बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है, अगर बीच में बॉन्ड ऑर्डर निकल के नहीं आता तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन केस ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल we have seen that bond order comes out to be 0, so these molecules are not stable, or we can say that He2 molecules are not formation takes place. Similarly, Be2 molecules are not formed because the bond order comes out to be 0. In case of neon molecules, this is also not formed because bond order comes out to be 0, and in case of argon molecules, bond order are also found to be 0 because this is noble gases, or we can say that they having completely filled orbitals, they are not useful in the formation of bonding. And the limitation of molecular orbital theory, and the last topic goes to limitation of molecular orbital theory. Concept of bond order is not feasible to explain existence of polyatomic molecules like that of, in case of polyatomic molecules, this theory are not valid like that of nitrate ion, carbonate, bicarbonate, sulfate. These kind of polyatomic ions. Polyatomic ions are those ions which contains more number of ions combination to form a polyatomic molecules, or we can say that a bigger molecule. इनके बारे में वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे पाई, सिंपल मॉलिक्यूल्स पे ही ये भी थ्योरी हमारे पास एप्लीकेबल हो पाई। इट डज नॉट गिव्स एनी आइडिया अबाउट मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री एंड शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के बारे में, उनकी शेप्स के बारे में, किस तरह की शेप्स उनकी पॉसिबल हो सकती है, उसके बारे में हमें क्लियर पिक्चर नहीं मिल पाई स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर पेशेंस लर्निंग।